জয় শ্রীরাম গাইজ। তো আজকে হচ্ছে 1 নভেম্বর। ইভেন আজকে যাচ্ছি আমরা একটা ট্রিপে, আন্দামান যাচ্ছি। আমি, আমার মা, আমার বাবা, বাস তিনজনই যাচ্ছি আমরা। তো এখন ডাইরেক্টলি এসে গেছি, দেখতে পাচ্ছ এটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এয়ারপোর্ট, যেটা সবাই জানো অবভিয়াসলি। তো এখন হচ্ছে এখনও বোর্ডিং পাস দেওয়া শুরু হয়নি, যেহেতু আমাদেরকে বললো এখন 3টে সময় দেওয়া শুরু হবে, মানে এখন ভোর 3টে। তখন আমাদের বোর্ডিং টাইমটাও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো এখন 2:20 বাজে, এখনও 40 মিনিটস আমাদেরকে এখন ওয়েট করতে হবে। তো খুব এক্সাইটেড আজকে, আন্দামান যাচ্ছি। খুব মানে মজা হবে। অনেক বছর ধরে পাহাড় 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 করেছি আমি, তো এবারে কিছু আলাদা করলাম, এবার একটু আন্দামান যাব, তো মজা হবে। চলো ব্লগটা পুরো এনজয় করো তোমরা। খুব যে 2 কি 3টে পার্টে পুরো 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 ব্লগ আসবে। এবার ইভেন জানি না আজকে মানে আমাদের ওখানে ল্যান্ড করার পর কী প্ল্যান আছে আমি কিছু জানি না, বাবা জানি সব। তো একদম চলো বোর্ডিং পাস নেবো একদম, তারপরে তোমাদের সাথে মিট করবো একদম 3টের সময়। আমরা এখন এদিকটাতে দাঁড়িয়ে আছি, কিছু করার নেই, কোনো কোথাও জায়গাও নেই। তো ঠিক আছে, আপাতত বাই। এখন বোর্ডিং পাস নেওয়ার পর একদিন সবাই দেখা হচ্ছে। বোর্ডিং হয়ে গেছে গাইস। ইভেন আমাদের আর মানে এখনও 1.5 ঘন্টা আমাদেরকে বসে থাকতে হবে, 1.5 ঘন্টা পর আমাদের ফ্লাইট আছে এখন। তো মানে আর ওয়েট করতে পারছি না, অনেক জলদি এসে গেছে। আমাদের এখানে প্রায় 2টোর সময় পৌঁছে গেছিলাম আমরা এয়ারপোর্টে, যেহেতু ভোরবেলা 5:30টায় ফ্লাইট আছে। তো মানে কোনো রিস্ক নেব না, তাই জন্য জলদি পৌঁছে গেছি আমরা। তো চলো একবারে এয়ারপোর্ট মানে ফ্লাইটে উঠে কথা বলবো। এখন খুব টায়ার্ড লাগছে, একটু ঘুমাতে ইচ্ছা করছে, তো একটুখানি এটা ছোটো একটা ন্যাপ নেব। তো চলো ঘুমাবো একটুখানি। চলো বাই এখনের জন্য। ফাইনালি ফ্লাইটে 5টা বাজতে যায়, ফ্লাইট এখন ঠিক হয়েছে। এবারে 5:30টার সময় ফ্লাইট ছাড়বে, তাহলে 2 ঘন্টা লাগবে আমাদের। এখন 7:30 বাজবে। আমরা ঘুমাবো, তারপরে বিকালে কোথাও প্ল্যান আছে বেড়ানো। চলো একদম ভোর তুলে দেখে নামবো, তার আগে আমাদের একটু ফ্লাইটটা দেখি। এখন कृपया ध्यान दीजिए, विमान में ईंधन भरा जा रहा है। कृपया सीट पर बैठे रहें, लेकिन सीट पर। ফাইনালি পোর্ট ব্লেয়ার এয়ারপোর্ট। অনেক কষ্ট করার পর, পুরো রাত জাগার পর, ও ভাবলাম ফ্লাইটে তো ঘুম হবে, কিন্তু কোনো ঘুম তো হলো না, কিছু হলো না। তো বেকার বেকার একবারে। তো এসে গেছি, তোমাদেরকে দেখিয়ে। এটা খুব সুন্দর, একটা ছোট্ট এয়ারপোর্ট, বাট ভেরি নাইস। খুব ভালো, সুন্দর, ডেকোরেটেড একদম, খুব ভালো এয়ারপোর্ট। তো প্রচুর টায়ার্ড হয়ে গেছি, তো এখন আর কিছু ভালো লাগছে না, একদম হোটেল যাব এখন। বিকেলে কিছু প্ল্যান আছে, তো বিকেলে প্ল্যানের জন্য রেডি হবো। তো এখনের জন্য বাই। আর আমার এনার্জি নেই সকাল থেকে। ও চলো গাইস, এটা হচ্ছে সেলুলার জেল। আমি এখনই অল্প করে দেখি, জানি না আগে হয়তো গিয়ে মানে ভিডিও করতে দেবে কি না। তো তাই জন্য আগে থেকে একটু অল্প এদিক ওদিক করে, মানে ইন্ডিয়ানদেরকে অনেক হতো, সবই জানো তোমরা, সবাই হিস্ট্রি পড়েছো সবাই। তো চলো তখন বাবার কাছে টিকিট কাটতে, তাকে বাইরেটা দেখিয়ে দিই ততক্ষণ একটুখানি।
और यहाँ पे कितने स्वतंत्र सेनानियों को लाकर फांसी दिया गया, ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिकॉज उन फ्रीडम फाइटर्स को फांसी देना होता, उन्हें अंडमान लाने की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें वहीं पे हैंग कर सकता था। ब्रिटिश के मकसद पूरे भारतवर्ष में जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं उन लोगों की ताकत को कमज़ोर करें। केसेस होते थे कॉन्स्पिरेसी, प्लान अगेंस्ट ब्रिटिश, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, 6 years, 8 years, 10 years की पनिशमेंट पीरियड। एंड ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे आने के बाद वो किसी को हत्या कर गए, अगेन उन्हें सेंड बैक नहीं कर सकते। अगेन उन्हें पनिश करना है तो फर्दर ट्रायल चलेगी। ट्रायल के समय इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ट्रायल के समय इट विल टेक लॉन्ग टाइम मीन्स इफ दे आर इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग, वो किसी को भी मोटिवेट कर जाएंगे। और उनके जो पॉजिटिविटी वेव्स हैं, आई एम रेडी टू डाई फ्रॉम द नेशन मीन्स आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री, मेरे देश के लिए मुझे कुछ करना है। तो वो उत्साह ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम थी, वो किसी को मोटिवेट कर जाएंगे, समस्या ब्रिटिशर्स के लिए। और उन्हें वहाँ पे रखा जाए विच इज़ नियर बाय गैलोस, फांसी घर के पास आ गए तो उन्हें इस ब्लॉक के नीचे आ गए तो उनको ये थॉट्स बदल जाएगी, आई एम वेटिंग फॉर द डे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माय कंट्री। पॉजिटिविटी इज देयर, मुझे अपने देश के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वैसे मुझे फांसी दे दिया जाएगा, वो सोच उन्हें कमज़ोर कर जाएगी। अब डिप्रेस से मर जाते हैं तो फाइल कम्स क्लोज, सपोज ऐसा नहीं होता। तो सारे धर्म में जो मरने के बाद जो धार्मिक तौर पे जो रिचुअल्स करवाते हैं, यहाँ पे मरने से पहले ना ही उनकी फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स हैं, तो सोल जाने के बाद बॉडी को थ्रो कर दिया जाएगा। सो आई हैव टू गिव समथिंग फॉर रेस्पेक्ट फॉर माई बॉडी, यानी कि वन द लाइफ दे हैव टू डू देमसेल्फ, ऐसे उनकी सोच थी। प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स, ये जो देख पा रहे हैं ये वाइट कलर के प्लेटफॉर्म, यहाँ पे उनकी बिफोर एग्जीक्यूशन उनके रिचुअल सारे कंप्लीट होने के बाद एक साथ 3 लोगों को हैंग कर सकें। लिवर को पुल कर देंगे तो ट्रैप डोर है 8 फीट डेप्थ, जो बॉडी वेट के साथ जाएगा स्पैल कॉर्ड को ब्रेक कर जाएगा। यदि स्पैल कॉर्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, इफ दे सर्वाइव, कानूनन उन्हें फांसी नहीं दे सकते। दैट्स रस्से के बीच में एक लोहे का मेटल रिंग, ताकि थ्रोट को कंप्रेस कर जाए, उसके बाद उनकी बॉडी से कलेक्ट किया जाए, बोर में पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाए। उनकी ऑर्डर में थी, बट वी हैव नो एनी रिकॉर्ड्स हाउ मेनी पीपल आर हैंग अप। तो हम फांसी कर देखते हैं, उसके बाद वर्कशिप भी चलता है। কতগুলো বন্ধ করে দিচ্ছি, না না বন্ধ করে খোলা আছে। चलो बंद করে দেখে চলো एक्सक्यूज इनको पहले नारियल के हर्ष को रिमूव करना है। इस प्रोसेस में 1-2 नारियल नॉर्मली वो छील सकते हैं, तीसरे चौथे नारियल के बाद हाथ वेट हो जाता है, जितने फोर्सली हिट करेंगे उतने फोर्स के साथ ये नीचे रखा गया ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने के समय ये पोर्शन उनकी पूरे घाव हो जाते थे, यानी कि कट हो जाएगा। जैसे फोर्सली मारते हैं, ये नारियल अपने सर के बल उठा के मारते हैं तो स्लिप हो जाएगा, तो नीचे रखा गया ऑब्जेक्ट में लगेगी, घाव हो जाएगा। और इसके ऊपर की लेयर्स होता है 1/2 इंच से 2 इंच की होती है। व्हेन दे ट्राई टू स्नैच, जैसे इसे स्नैच करने लगेंगे नेल को डैमेज कर जाएगा। और उसके बाद इसे पानी में सॉफ्ट करने के बाद, जैसे छिलके निकालने के बाद पानी में सॉफ्ट करेंगे। नेक्स्ट सेशन वुडन आर्मर से पॉन्डिंग करना है। पॉन्डिंग प्रोसेस हाथों में छाले पड़ जाएगी और ये रेसे नॉर्मली नहीं निकलता। व्हेन दे ट्राई टू स्नैच, जैसे स्नैच करेंगे दूसरे सेक्शन में तो उनकी नेल को डैमेज कर जाती थी। बंच ऑफ कॉर्ड्स कलेक्ट करने के बाद उन्हें रोप में करना है, यानी कि ये जो फाइबर्स हैं इसे हुक में लॉक करने के बाद जैसे इसको रोटेट करेंगे, जैसे ट्विस्ट होगा, जैसे रिलीज होगा, ये उंगलियों पे घाव कर जाएगी। यानी कि यहाँ पे ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, तो उनको बल्क ऑफ कॉइल्स को लेकर रोटेट करना है और ये रोटेट करने वाले को हैंड शोर और ये जो रिलीज होने के कारण उंगलियों पे घाव। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, ट्राई कोकोनट 30 पाउंड कोकोनट ऑयल 10 पाउंड मस्टर्ड सीड्स उनके लिए तय किया। और एक टारगेट थी, दे यूज 2 टाइप ऑफ वेट इन द ऑयल ग्राइंडिंग मशीन, दे ट्रीट लाइक ऑक्सन बुल। सॉरी टू से ऑक्सन बुल इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द वर्क। एंड व्हेन दे स्टार्ट ग्राइंडिंग, जैसे ग्राइंड करने के वक्त रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके पर चाबुक चलाते थे, उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक का कंप्लीट करना था। ये सारे काम नहीं कर पाते तो पनिशमेंट बढ़ती है। आगे देखते हैं, इसमें ओरिजिनल ये रोप मेकिंग मशीन ओरिजिनल है, बाजू में ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन रखे हुए हैं, ये ओरिजिनल है, ये वुडन वाली मॉडल है, यहाँ पे आएगा। ये जो पनिशमेंट है देख पा रहे हैं, फ्लॉगिंग फ्रेम पनिशमेंट है, इवनिंग टाइम पनिशमेंट। इवनिंग टाइम पनिशमेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल, दे हैव टू रियलाइज दैट साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। कुछ स्वतंत्र सेनानियों को जैसे जेल से बाहर ले जाते हैं आउटडोर काम करवाने के लिए, जब ब्रिटिशर्स के हेडक्वार्टर हैंड ऑपरेटिंग बोर्ड्स को ऑपरेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हैंड ऑपरेटिंग कार्ड्स भी होती है, उसे ऑपरेट करने वाले इंडियन होते हैं। तो उन्हें शाम के वक्त जब प्रिजन के अंदर वापस ला रहे हैं तो उस दौरान उनकी नज़रों के सामने करवा जाता था, अंग्रेज इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चला रहे हैं, एक इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहा है।
So British to Indian means revolt, Indian to Indian means sentiment. तो बोल रहे हैं कि what we have on outside the same population we have inside. 25% British population, same we have 100% Indian population they have inside. But इनके और उनमें क्या फर्क है? They are ready to die for the country, so they working for country. Those people are outside, वो अपने देश के लिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास ब्रिटिश के पास काम कर रहे हैं, तो इनकी फीलिंग्स को कैसे कमजोर कर रहा है. सो अगेन वी हैव टू सेलेक्ट इन बिटवीन द पीपल. जैसे इंडियन के ऊपर चाबुक चला, जमादार, टेंडल, गार्ड, वारंट, पेटी ऑफिसर. ब्रिटिश टू इंडियन तो रिवॉल्ट हो जाएगी. हमारे लोग जब चाबुक चलाएंगे उनकी मनोबल कमजोर हो जाएगी. अंटिल ड्रग्स कम्स आउट, अनकॉन्शियस आते थे, दोबारा उनको ट्रीट किया जाता था, रेफ्यूज करें, फाइनली फांसी देने की आवश्यकता नहीं थी, बिकॉज दे डाइड बिफोर दैट बिकॉज ऑफ टॉर्चर. फॉर एग्जाम्पल इन योर क्लासरूम, मॉनिटर एंड मिस वॉज अ डिफरेंट. टीचर एंड मॉनिटर में क्या डिफरेंट होता है? टीचर मिस बोलते हैं तो कीप क्वाइट, हम लोग सुनते हैं, पोलाइटली रहते हैं. हमारे दोस्त कभी बोलता है कीप क्वाइट, हमें फील होता है कि वही इज सेइंग. सो दैट मीन ये वहाँ पे भी क्लास हो जाता है ना. हम लोग चुपचाप से रहेंगे, वो बोलने की जरूरत नहीं है, बट हमारे अंदर ईगो आ जाता है. सेम फीलिंग्स तो इनके आएगा नहीं. अभी कोई क्वेश्चन होता है ना कि कैसे मारे तो इनको क्यों मिलेगा. तो जैसे फ्रीडम फाइटर्स को लाते थे, उनकी यूनिफॉर्म के साथ उनके गले में इस तरीके से नेक रिंग, जो नेक रिंग आज जिसे हम लोग आईडी प्रूफ के नाम से जानते हैं. आईडी प्रूफ आज जैसे हम लोग गले में पहनते हैं, तो पहनने के बाद आईडी प्रूफ पहनने के बाद हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी जनरेट होती है, वो पॉजिटिविटी को कैसे कमजोर कर रहे हैं. विच इज नॉट यूज्फुल टू द पर्सन हु पुट इट समथिंग इन द नेक. Which is not useful to the person who put it something in the neck means जब वो सोचने लगेंगे something we are holding in the neck एंड हमारे लिए काम की नहीं है, तो वहाँ पे मनोबल कमजोर हो जाएगा. और यहाँ पे बिना परमिशन के someone look forward, अग्रेसिव हो जाएंगे, आगे की कार्य परफेक्टली नहीं कर पाएंगे. चेन फिटर while deportation time, more chance to escape from the ship. Second punishment, bar fitter straight rod, नी को बेंड नहीं कर पाते थे. एंड थर्ड वन ट्राइंगल शेप, क्रॉस बार फिटर unable to walk. और उनके पनिशमेंट की रिफॉर्म झूठ, साख, easy to identify compared with other is a punishment political freedom fighter. ब्रिटिश बोल रहे हैं कि introduction is a waste of time. When you start inflow, it will take a time. अब किसी को मतलब इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहा है और यहाँ पे पनिशमेंट कोड्स हैं, किसी को परिचय करवाने की जरूरत नहीं है. ड्रेस कोड के माध्यम से उन्हें पता चल जाता था. Why they give this type of punishment for him? Newcomers are हैं, they never raise or second abilities. Everything psychology, behind psychology, British cared about it. आए. इधर से हाथ देकर ये सिस्टम बना है. मैंने देखी थी ये वाली वीडियो. তো একটা বিচে সেখানে কি সিনিং বিউটি. ও না मम्मी वहाँ বসে আছে. কি সিনিং বিউটি, ওফ অসম. আর এখানে যতগুলো ভেন্ডার দেখছো প্রতিটা বাঙালি ভেন্ডার. এখানে যে কুলফিওয়ালা, চাটওয়ালা, যেই হোক প্রতিটা বাঙালি এখানে. মানে এখানে বাঙালি প্রচুর ভর্তি, রেসিডেন্টও ভর্তি, টুরিস্টও ভর্তি, পুরো বাঙালি ভর্তি পুরো. তো চলো এখন যদি কোনো নেক্সট পয়েন্ট থাকে তো সেখানে যাবো, নাহলে একবারে রুমে যাবো. হ্যালো.